یہ وہ نفل ہیں کہ جو دنیا کی کوئی ناممکن چیز ہے اور دنیا کا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اب یہ چیز نہیں ہو سکتی، اللہ کے خزانوں سے منوانے کے لیے یا اللہ کے خزانوں سے لینے کے لیے عجب چیز ہے۔ کچھ دن پہلے ہمارے ایک مخلص نے اس کی یاد دہانی کرائی، مجھے یاد آنے لگا کہ میں نے تو کسی دور میں یہ نفل پڑھتا تھا۔ جو ان پڑھ بندہ ہوتا ہے نا، اسے ایک ہی وظیفہ آتا ہے، ساری زندگی اسی ایک کو پڑھتا ہے، کتابیں پڑھا ہوا، پھر اس کے پاس اعمال کی مشقیں ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں بھول جاتی ہیں۔ یہ بھی زندگی میں کبھی میری شامل تھی۔ مجھے احساس ہونے لگا، اس نے بتایا، میں نے کہا اس میں ربنا آتنا بھی ہے؟ ہاں ہے۔ اوہو، یہ تو میں پڑھتا رہا ہوں اور اس کی تو میں نے جلوے آنکھوں سے دیکھے، اس کے کمالات، اس کی تاثیر، اس کی برکات۔ ایک واقعہ سنا، ایک گھر میں گیا میں، مجھ سے کہنے لگے آپ ہمارے گھر آئیں، دعا فرما دیں۔ ہماری نسبت حضرت ابو ایوب انصاری جو میزبان نبوت تھے، ہماری نسبت ان کے ساتھ ہے، کبھی ہمارے گھر آئے، بار بار کہتے تھے۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کے گھر آؤں گا، اور مجھے پتا تھا کہ ان کے گھر میں بہت غربت ہے، تنگ دستی ہے، بس زیادہ۔ 2 چارپائیاں پڑی تھی گھر میں، ایک پہ تو گھر والے بیٹھے تھے اور ایک چارپائی پہ چادر بچھی ہوئی تھی، تو انہوں نے مجھے بیٹھنے کو کہا نا، میں بیٹھا نا تو میں چارپائی کے اندر چلا گیا۔ معلوم یہ ہوا اس کا بان ٹوٹا ہوا تھا، اس میں جگہ جگہ گڑھے تھے۔ چارپائی کے پار تو نہ نکلا، لیکن چارپائی میں دھنس گیا، اور وہ چارپائی کے دھنسنے نے مجھے پیغام دیا کہ اس گھر کا سارا سرمایہ یہی کچھ ہے۔ مجھے کہنے لگے آپ دعا کر دیں۔ میں نے کہا میں دعا کروں گا، دعا کر دیں، میں دعا کروں۔ اور میں نے ان سے عرض کیا میں ایک نفل دیتا ہوں، لیکن میں نفل دوں گا، آپ سارے گھر والے پڑھیں، اور پھر اس نفل کے لیے میں نے انہیں 10 منٹ دیے، اس کے فائدے، اس کے نفع، اس کے کمالات، اس کی تاثیر اور اس کی برکات میں نے انہیں بتایا۔ ان کے بڑے وہ تھے، وہ کہتے تھے جیسلمیر سے، راجستھان سے ہمارے بڑے کورا لٹھا لاتے تھے، کورا لٹھا لا کے یہاں دھوتے تھے، دھونے کے بعد وہ بالکل سفید لٹھا بن جاتا تھا، لاجواب۔ اور پھر ہماری بڑی دکان ہوتی تھی فلاں جگہ، اس دکان کو اجڑا میں نے دیکھا ہے، اجڑا دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور وہ 4 آنے 6 آنے میٹر نہیں گز بکتا تھا، 4 آنے 6 آنے گز، جبکہ اس دور میں عام کپڑا جو تھا آنا 1.25 آنے 1.5 آنے گز بکتا تھا، اور یہ 4 آنے 6 آنے گز بکتا تھا۔ اور ہمارے پاس گودام بھرے ہوئے ہوتے تھے، کوٹھے بھرے، لفظ انہوں نے استعمال کیا، کوٹھے، کمرے بھرے ہوتے تھے، اونٹوں کے اونٹ لدے آتے تھے، اونٹوں کی لائنیں آتی تھی، کورا لٹھا آتا تھا۔ اور پھر کہا ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا، چارپائی کے نیچے سارے نوٹ بچھا دیتے تھے، نوٹ بچھا کے 100 والا نوٹ ہوتا تھا بڑا، نوٹ بچھا کے اوپر گدا بچھا دیتے تھے، پھر نوٹ بچھاتے تھے، پھر گدا بچھاتے تھے، پھر نوٹ، اور اوپر چارپائی پہ جو ہے وہ چادر بچھا دیتے تھے۔ عام بندہ سمجھتا تھا چارپائی ہے، اس پہ بیڈ شیٹ گدے بچھے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے نیچے سارے نوٹ ہوتے تھے۔ نوٹ کہاں رکھیں، بینکوں کا عمومی مزاج نہیں تھا۔ اب پھر ایسا ہوتا تھا ہمارے گھر میں گھڑے پڑے ہوتے تھے، گھڑوں کے اوپر مٹی کے ڈھکنے ہوتے تھے، اور ایسے محسوس گھڑونچی ہوتی تھی، گھڑوں کی لکڑی کی بنی ہوئی، جس سے گھڑے، ایسے محسوس ہوتا تھا یہ پانی کے گھڑے ہیں۔ وہ گھڑے سارے نوٹ سے بھرے ہوئے ہوتے تھے یا چاندی والے سکوں سے بھرے ہوتے تھے، چاندی والی اشرفیوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، سورج کے سائے ڈھلتے بڑھتے، یہ بس پھر غربت اور فقر کی انتہا میں نے دیکھی۔ اور وہ جو کہہ رہے تھے کہ دولت ہے، یہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا اور اس کے آثار بھی دیکھے، وہ سچ کہہ رہے تھے۔ پھر وہ بیت ہو گئے، پھر ان کا تقاضا تھا کبھی آپ آ کے ہمارے گھر دعا کر دیں۔ کئی عرصہ رہا، زندگی کی مصروفیت نے فرصت نہ دی۔ جب میں گیا نا تو اس گھر میں کچھ نہیں تھا، ایک چارپائی تھی جس پہ وہ بیٹھے تھے، اس پہ کوئی چادر نہیں بچھی ہوئی تھی، اور ایک چارپائی جس میں میں بیٹھا، اور بیٹھتے ہی میں دھنس گیا، میں نے محسوس نہ ہونے دیا، میں پھر پائنتی پہ بیٹھ گیا سیدھا ہو کے، اس کے علاوہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ کو اگر میں نفل دیتا ہوں، دعا دیتا ہوں، آپ وہ پڑھیں۔ پھر اس نفل کے فضائل، اس کی برکات، اس کے کمالات میں نے انہیں بتائے۔ آپ یہ پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ غیب سے برکتوں کے دروازے۔ 3 بیٹیاں تھیں، ایک کی عمر 42 سال، ایک کی 39 سال، ایک کی تقریباً 35 سال، بیٹوں کی کوئی شادیاں نہیں، گھر ایسے اجڑا ہوا۔ اور وہ کیا لگاتی تھیں، یہ اسے کناری کہتے تھے، دوپٹوں کے اوپر پہلے ایک سنہری رنگ کی لیس لگتی تھی دلہنوں کے لیے،
दुल्हन के जोड़े सजाए जाते थे, वो खवातीन वो लगाती थी। लगाते लगाते उनकी नजरें खत्म हो गई। सुई का काम था, बड़ी सुई का काम था। उनकी नजरें खत्म हो गई, उनके बाल सफेद हो गए, उनके हाथ छिद गए। बस वही था घर का दाल दलिया और कुछ नहीं था। ये जो नफिल मैंने दिए, नफिल दिए, और मैंने इनसे कहा देखो जल्दी ना करना, ये 100 नफिल पढ़ने हैं, इतने दिनों में पूरा कर लें। 100 पढ़ने हैं, रोज 2 पढ़ें, 4 पढ़ें, 1 पढ़ें, पढ़े ऐसे कि जैसे पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे हैं। बस ये मेरा लफ्ज मुझे नशीन रहे, इस लफ्ज को दोहराएं, पहला आखिरी दफा। बच्चों यकीन, ध्यान, गिड़गिड़ा के, साइल मोहताज बन के, भिकारी बन के, मंगता बन के, मंगता पढ़े ऐसे जैसे कोई पहले और आखिरी दफा पढ़ रहे। उन्हें ये नफिल मैंने लिख के दे दी है कि आप पढ़ें। असल में जब बंदे में सच्ची तलब हो, सच्ची तड़प हो, सच्चा जज्बा हो, तो फिर वो बात को फौरन लेता है, यकीन से लेता है, एतकाद से लेता है, एतमाद से लेता है। फिर दिल में अगर कोई शक, वसवसे, बदगुमानियां आए भी, उनको ना रास्ता देता है, ना जगह देता है, सब बदगुमानियां वसवसे दिल से निकाल देता है। तो दिल में यकीन से लेता है। उन्होंने ऐसे किया। मैंने कई लोगों को बताया, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं, कई लोगों को बताया। कुछ ने इसको यकीन से लिया, और जिसने भी यकीन से लिया, मैंने उसकी जिंदगी में इसके नताइज देखे। अब सुने कुदरत ने क्या निजाम बनाया ना। चोले, ये कमीजें कढ़ाइयां करते थे, और कढ़ाई करके कमीज, मलमल के कमीजें होती ना, मलमल के चोले कमीजें, ये कढ़ाइयां करके ये बाहरले मुल्क जाते थे। तो वो जाता था, उनका बेटा कराची में जाके बेचता था, और कराची के उमरा और बाहरले मुल्क वो जाते थे। हाथ का काम, जैसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं, क्या कराची में चंद महीने उन्होंने ये अमल किया, कुछ अरसा किया। अब कुदरत देखे कैसे रास्ते खोलती है। वही बंदा जो उनसे सिले हुए कढ़े हुए कपड़े लेता था, वो एक दफा कहने लगा कि अगर आपको मैं कुछ मशीनें लेकर दे दूं और आप ये काम मशीनों से कर दें, खूबसूरत भी होगा और काम भी तेज होगा। उसने कहा हमारे पास तो पैसे नहीं। तो कोई हर्ज नहीं, हम पैसे आपस में काटते रहेंगे। तय हो गया। उसने मशीनें पैक करा के ट्रेन के जरिए भिजवा दी। घर में 2 कमरे थे, एक कमरे में मशीनें लगा ली। अब मेरे पास आया कि मशीनें लगाई हैं, बिजली का मीटर लेना है, घर से बिजली कट चुकी थी, बिजली का मीटर लेना है, फलां बंदा आपका ताल्लुक वाला है। मैंने कहा मैं उसे कह दूंगा। उसे कह दिया, बिजली का मीटर लग गया। बस वो बिजली का मीटर तार नहीं आई थी, वो रेस की तार आई थी, वो तवंगरी की तार आई थी, वो दौलत की तार आई थी, वो उरूज और कमाल की तार आई थी। वो तार नहीं आई थी, बस वो मीटर कोई और चीज का लगा था, बजाय बिजली का मीटर लगा था। क्यों? इस नफिल को 100 नफिल मान लिए, और इस नफिल को पढ़ के जो अल्लाह का दरवाजा खटखटाया जाता है, वो खुलता ही खुलता है, और 100% खुलता है। बस को यकीन, दर्द, गम वाला खुलवाने वाला, कोई यकीन, दर्द और गम वाला हो। बस फिर कुदरत का क्या निजाम चला। बेटियों की शादियां यूं हुई तो उन्होंने कहा कोई हमें जहेज की जरूरत नहीं है, हमें तो आप जैसे शरीफ लोग चाहिए थे। बेटों की शादियां हो गई। कुछ अर्से के बाद मुझसे कहने लगा हम जा रहे हैं। कहां जा रहे हो? कह रहे हम घर बेच रहे हैं और हम कराची जा रहे हैं, सारे आपसे दुआ कराने आए हैं। सारे आ गए मेरे पास। क्यों? कहने लगे कराची में एक बड़ा बंगला ले लिया है और हमने वहां ले लिया। मैं खामोश। वो टूटी चारपाई और मेरा बैठना और धंसना है, एक वो नक्शा था। और ये पता है कितने अरसे में हुआ? ये गालिबन मेरा अंदाजा है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर एकदम नक्शा पलटा, एकदम नक्शा पलटा। और कहने लगे कि वो नफिल हम पढ़ रहे हैं, घर के 2 अफराद के बारे में कहा कि ये कोताही करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, हम बाकायदा से पढ़ रहे हैं। जब जाने लगे ना, बस वो गए और उसके बाद मेरा राब्ता खत्म हो गया। फिर राब्ता नहीं रहा, उन्होंने भी नहीं रखा। ये फिर किस्मत की बात होती है, जिस दर से मिला है उस दर को ना छोड़े, ये भी किस्मत की बात होती है। बस मैंने जाते जाते उनसे ये बात कही थी कि इस नफिल को ना छोड़। आज हमारे एक मुखलिस बता रहे थे कि कैंसर था, मैंने कहा ये नफिल पढ़े, वो ठीक भी हो गया, शादी भी हो गई, आज उसके बच्चे भी हैं। जिंदगी के कितने वाकयात हैं और जिंदगी के कितने मुशाहिदात हैं। और ये नफिल मेरे नहीं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती की निस्बत से मिले हुए हैं। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को 13.5 सदियां हो गई हैं। कितनी?
13.5 सदियां हो गई हैं अल्लाह वालो, और 13.5 सदियों से लोगों ने इस नफिल को पढ़ा, आजमाया, पाया, पढ़ा, आजमाया, पाया। 100 नफिल पढ़ने की मन्नत मांग ले। मैं हमेशा अपनी जिंदगी में जब भी कोई अमल करता था, उसकी मन्नत मानता था, तो मैं पहले फैसला करता था कि ये सारा कुछ मैं अपने मुर्शिद के लिए, उसके सारे निजाम के लिए करता हूं। ये मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दफा किया। मैंने जिंदगी में शायद 1984 से लेकर 1991 तक, 1984 से लेकर 1991 तक अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा तो मैंने अपने मुर्शिद के लिए पढ़ा, और उसका मैंने रिजल्ट बड़ा देखा। जिस जोर से दीवार पे गेंद को मारेंगे उसी दौर से वापस आएगी, और अपने शेख के लिए जो करेंगे और उनकी नस्लों के लिए, उसके निजाम के लिए, उसका नतीजा मैंने हैरत अंगेज देखा, बहुत हैरत अंगेज देखा। असल में मुझे बाद में समझ आई कि वो सिर्फ शेख और मुर्शिद नहीं थे, उनके साथ जितने भी लाखों औलिया उस हिजरे के हैं सदियों से, जिनके साथ निस्बतें चली आ रही हैं, लाखों, और मैं अगर ऐसा कह रहा हूं तो ठीक कह रहा हूं, लाखों औलिया हैं। वो लाखों औलिया तक वो तासीर जाती है, और वो लाखों औलिया अल्लाह की बारगाह में झोली उठा के कहते हैं मौला इसको पहले अता फरमा। बहुत कमाल नफिल है, बहुत पुरतासीर नफिल है। इसके फायदे, इसके जलवे, मैंने सिर्फ एक वाक्या सुनाया, एक वाक्या सुनाया। इसके वाकयात सदियों पे मुहित हैं। कुछ वाकयात मेरे साथ भी हुए हैं, लेकिन सदियों के साथ इसके वाकयात चले आ रहे हैं। यकीन के साथ आपको जिंदगी का मैं तोहफा दे रहा हूं, और इसको फैलाएं, लोगों को बताएं, और लोगों को कहें ये अनोखी चीज है, ये सारा साल करने की है, ये हर लम्हा हर लहजा करने की है। इस नफिल को 100 नफिल की नियत कर लें, और इसका हदिया यह है जब 100 नफिल पूरे हो जाएं, मीठी देग बांट दें, या मुट्ठी देग, मुट्ठी मीठी चीज बांट दें, जो हस्ब तौफीक है। मुट्ठी बांट दें या देग बांट दें, मीठी चीज जरूर बांटें। हमने जिंदगी में पाना है, अल्लाह से मनवाना है, लेकिन याद रखिएगा उस वक्त मजबूर होकर, बेबस होकर, मजबूर होकर, बेबस होकर ना, बल्कि उस वक्त जब सब कुछ हो, सेहत भी हो, दौलत भी हो, बरकत भी हो, इज्जत भी हो, वकार और शान और शौकत भी हो, और फिर पाए असल रास्ता वही है, असल मंजिल वही है, असल जिंदगी वही है। बेबस हो के तो सबको रोना और मांगना आता है। असल तो यह है कि बेबस ना हो, अल्लाह ने सब कुछ दिया हो, और फिर भी ये फकीर बन के, मोहताज बन के, भिखारी बन के उसके खजानों में मांग रहा हो और उसकी चौखट पे पड़ा हुआ हो। अल्लाह को इसमें बड़ा तरस आता है और बहुत रहमत है। मैंने कुन फायकून के नफिल दिए हैं, इन नफिल को तवज्जो से पढ़ें, और 100 नफिल अबकरी की नियत करके, मेरी और मेरी नस्लों की नियत करके, ये समझ लें ये 100 नफिल नहीं होंगे, ये नफिल का चिल्ला हो जाएगा। फिर जिंदगी में 2 नफिल पढ़ेंगे और फैसले करा देगा। मुल्ला जीवन रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बादशाह ने कहा इसको गिरफ्तार करो। बेटे भागते भागते आए और कहा अच्छा मेरी गिरफ्तारी का हुक्म है, तो कहा मेरा लोटा और मुसल्ला ले आओ। उस्ताद को लोटा और मुसल्ला दिया और फिर बादशाह के पास गए। वो बादशाह वालिद था कि उन्होंने मुसल्ला ले लिया, तो बादशाह नंगे सर नंगे पांव दौड़ा आया और माफी मांगी, मुसल्ले पे खड़े ना होना वरना कोई फैसले और हो जाएंगे। माफी मांगी, बादशाह ने माफी मांगी। तो पहले इस नफिल का चिल्ला कर लें। जैसे किसी को कहते हैं ना ये बंदा आमिल है, उसने चिल्ला किया हुआ है, फिर एक दफा पढ़ता है और उसी वक्त मसला हल हो जाता है। ये